Yes. Any doubt up to this in body fluids and circulation? Okay, in day 59, question number 9. How many mechanisms are there for clotting in our body? There are two mechanisms. One is intrinsic, one is extrinsic. Question number? Hair-like structures present in case of pteridophytes, they are called ramenta. Okay, or that is not required at present. अब नहीं चाहिए. Question number 60. Rate of heartbeat is highest in mice. जो smallest animal होगा उसमें heartbeat ज्यादा रहेंगे. Largest heart blue whale. Heartbeat सबसे ज्यादा जो है small size animals में ज्यादा होंगे compared to larger animals. Yes, lymph also undergo coagulation, blood, lymph, they coagulate, they clot, लेकिन सीरम क्लॉट नहीं होता है. Serum is not clotting. Come back to the structure of heart. So in human heart, as we told, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, there are 4 chambers are there. ठीक है? From the right ventricle arises blood vessel. A blood vessel arises from the right ventricle, and this blood vessel name is pulmonary artery. Pulmonary artery, its function is to carry deoxy blood from right ventricle to lungs. Right ventricles to lungs, the blood is moving through pulmonary artery. ठीक है? And from the left ventricle there is one more blood vessel. From the left ventricle also there is a blood vessel called aorta. What is the blood vessel from left ventricle? Aorta. Actually what happens, right ventricle से deoxy blood pulmonary artery में जाएगा. Pulmonary artery, and from pulmonary artery deoxy blood move into lungs. In lungs blood is oxygenated, and oxygenated blood from the lungs enter into pulmonary veins, and these pulmonary veins come back into left atrium. लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाते हैं. दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी से जाएंगे लंग्स को, फिर लंग से वापस भी आना है टू दी लेफ्ट एट्रियम. And who will carry this oxy blood from lungs to the left atrium? Pulmonary veins. Pulmonary veins. अच्छे से समझ लीजिए बात. राइट साइड डीऑक्सी ब्लड होगा, लेफ्ट साइड ऑक्सी ब्लड. सो डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और एक बार से बता रहा हूं मैं, डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल
यू कैन सी द सीक्वेंस हियर। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाना है, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, and after that oxygenated blood come back into the left atrium through pulmonary veins, pulmonary vein से वापस आ जाना है। and in between the right ventricle and the left ventricle there is a thick muscular partition. What is this muscular partition? Interventricular septum, interventricular septum, thick muscular partition, thick muscular partition present between right ventricle and the left ventricle is called interventricular septum. और right atrium और left atrium upper side दोनों के बीच में भी एक partition है. What is that partition? Interatrial septum. In between right atrium, left atrium, the partition is interatrial septum. Interatrial septum. And in between right atrium and right ventricle, in between right atrium and right ventricle, there is a valve. There is an opening. What is this opening? In between right atrium, right ventricle, एक partition है ये, and this opening is called tricuspid valve. क्या बोलेंगे? Tricuspid valve. You can remember RST. What is RST? Right side tricuspid. Right side क्या है? सिंपल, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं यहाँ पे बच्चे. राइट साइड ट्राइकस्पिड. Similarly, left side what is present? Bicuspid or mitral valve. Left side. तो लेफ्ट साइड के लिए लिखेंगे हम LSB, लेफ्ट साइड bicuspid. Left side bicuspid. And remember, tricuspid, bicuspid, combinedly called. Tricuspid, bicuspid, combinedly called atrioventricular apertures. क्योंकि ये अट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है. अट्रियम और वेंट्रिकल के दोनों के बीच में है, तो क्या बोलेंगे? अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर बोलेंगे. अट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर. ये मैकेनिज्म तो समझ में आ रहा है ना पूरा आपको? और एक बार स्टार्ट करो. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा ब्लड? लंग्स. फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर कहां पर आएगा? लेफ्ट अट्रियम. लेफ्ट अट्रियम से गिरेगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में. And the branches of aorta are called arteries. Branches of aorta are called arteries. देखिए आपको पूरा समझ में आने वाला है अभी एक 5 मिनट्स में. कंप्लीट. Aorta is the largest blood vessel which is emerging from left ventricle. And aorta के जो branches होते हैं, those branches are called arteries. And arteries के जो branches होते हैं arterioles. Arterioles के जो branches होते हैं capillaries. और capillaries से जो branches होंगे, capillaries open into venules. और venules से veins, और veins जाके ओपन होंगे major veins. And there are two major veins of the body. एक है superior vena cava
सुपेरियर वेना कावा और एक है इंफीरियर वेना कावा। चलो और एक बार स्टार्ट करेंगे जर्नी। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करके वापस राइट एट्रियम में आना है। क्या है बोलो और एक बार। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करना और हमारी जर्नी कहां खत्म होगी? राइट एट्रियम में। तो आप बोलेंगे शॉर्टकट ले लो सीधा, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाओ। ऐसा नहीं जा सकते है ना, यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है। आप जो बोल रहे हैं वेंट्रिकल से एट्रियम, वो बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो नहीं होता हार्ट में कभी भी, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। स्ट्रक हो गया था। देखिए और एक बार हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। इन लंग्स ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड and after that it come back to left atrium through pulmonary veins, from left atrium to left ventricle, from left ventricle to aorta। aorta के बाद यहां पर है देखिए arteries, arteriole, capillaries, venules, veins, and those veins open into two major veins, superior vena cava, inferior vena cava, and both superior vena cava, inferior vena cava open into right atrium. So you can feel here there is a complete close network of blood vessels। क्लोज नेटवर्क है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करके राइट अट्रियम में वापस आना है, देन देर इज ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। इसी को हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को बोलते हैं। सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा का फंक्शन बताइए। सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दे ब्रिंग डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स सुपेरियर वेना कावा, फ्रॉम लोअर पार्ट्स इंफीरियर वेना कावा। और आपके नोट्स में ये लिखा हो रहना चाहिए, पूरा ये पूरा ब्रांच रहना चाहिए, चेन। ओके ठीक है, लिख दिए है ना अब। एंड वन मोर थिंग, सुपेरियर वेना कावा कैन आल्सो बी कॉल्ड, एग्जाम में वर्ड चेंज हो सकते हैं। सुपेरियर वेना कावा आल्सो कॉल्ड प्री कैवल वेन, pre-caval vein, inferior vena cava also called post-caval vein, post-caval vein. And the function of this pre-caval vein and post-caval vein is to bring deoxy blood from upper parts and lower parts respectively into the right atrium। और जब भी मैं वेन बोल रहा हूं, देखिए वेन बोल रहा हूं, दैट मीन दे ओपन इनटू हार्ट। ये वेन ओपन इनटू हार्ट, ये भी वेन ओपन इनटू हार्ट। जब मैं आर्टरी बोल रहा हूं, it is moving out of the heart, artery is moving out of the heart, aorta is also moving out of the heart। ठीक है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को क्या बोलना बोला मैं मिलाकर? ट्राई, ट्राई प्लस बाई क्या बोलेंगे? अट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स, अट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स बोलेंगे। इन बिटवीन अट्रियम एंड वेंट्रिकल there are some openings, these openings are called atrioventricular apertures। ओके कोई क्वेश्चन करना है स्ट्रक्चर में? एनी क्वेश्चन? प्री कैवल पोस्ट कैवल के फंक्शन बोल सकते हैं आप। सो यू शुड टेल ऑल द फंक्शंस। क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप में, सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, पल्मोनरी वेन्स, इन सब के फंक्शंस मैच करने आना चाहिए। सुपेरियर वेना कावा का फंक्शन बोलो, डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स
inferior vena cava, deoxy blood from lower parts into the heart, pulmonary artery. It carry deoxy blood to the lungs, aorta बोलो. It carry oxy blood from left ventricle to all body parts. Pulmonary veins का बोलो. It bring oxy blood from lungs into the left atrium. ये सारे चीजें आना चाहिए, functions आपको बोलने आना चाहिए. Apart from this, इसके अलावा और क्या याद रखना है? What is the location of the heart? Where heart is present? What is the size of heart? What is the cover of the heart? सबसे पहले अगर हम शुरू करेंगे लोकेशन की, अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. तो हार्ट कंप्लीटली राइट साइड, कंप्लीटली लेफ्ट साइड ऐसा नहीं बोल सकते. सो हार्ट क्या है? स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ऐसा भी नहीं बोल सकते आप, टोटली लेफ्ट साइड भी नहीं बोल सकते. इन बिटवीन द लंग्स, इन बिटवीन द लंग्स, द स्पेस इन बिटवीन द लंग्स इज आल्सो कॉल्ड मीडियास्टिनम भी बोल सकते हैं. सिंपल, वेयर हार्ट इज लोकेटेड, मीडियास्टिनम. मीडियास्टिनम भी बोलते तो चल जाएगा. साइज क्या है? अबाउट वंस क्लोज्ड फीस्ट. क्लोज फीस्ट कितना होता है? क्लोज फीस्ट का साइज कितना है? इतना हार्ट का साइज होता है जनरली. बेबीज में भी उनके क्लेंच फीस्ट के उतना, अडल्ट्स में उनके क्लेंच फीस्ट के उतना. ओके. नेक्स्ट है लोकेशन और साइज के बाद कवर. कवर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम है, डबल लेयर है, याद रखें, डबल लेयर. कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम, डोंट से पेरिकॉन्ड्रियम. ये पेरिकार्डियम है. पेरिकॉन्ड्रियम भी होता है. पेरिकॉन्ड्रियम इज कवर ऑफ द कार्टिलेज. ये पेरिकार्डियम है, डबल लेयर है. इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम फ्लूइड इज प्रेजेंट which reduces friction between the two membranes. Pericardium double layer है which reduces the friction between the two membranes. Double layer. Okay. लोकेशन हो गया है, साइज, कवर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट वॉल. जब आप डिसेक्शन करेंगे फर्स्ट ईयर एनाटॉमी क्लासेस में, प्रैक्टिकल एमबीबीएस में, तब थोरासिक कैविटी ओपन करेंगे. थोरासिक कैविटी ओपन करने के बाद जो है आपको दिखेगा एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, वही है पेरिकार्डियम. एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग के वैसा दिखेगा. फिर वो उसको कट करना, कट करने के बाद अंदर दिखेगा हार्ट वॉल. और हार्ट वॉल जो है 3 लेयर से बना हुआ है. फर्स्ट पेरिकार्डियम, पहले पेरिकार्डियम दिखेगा, पेरिकार्डियम हटाने के बाद हार्ट दिखेगा. और हार्ट के 3 लेयर्स हैं. हार्ट वॉल इज मेड ऑफ 3 लेयर्स. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ऐसे 3 लेयर्स हैं हार्ट में. And heart is made of which muscle? Heart is made of cardiac muscle. कार्डियक मसल है,
These are involuntary muscle. What is the speciality of this cardiac muscle? They are involuntary muscle. They never suffer from fatigue. Involuntary हैं ये. They are not under our control. They have their own action potential. Heart develop its own signals for contraction and relaxation. There is no external stimulus required for heart contractility. हार्ट खुद अपने सिग्नल बना लेगा. तो हार्ट इज इनवॉलेंट्री बोलेंगे, नॉट अंडर अवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री है. नेवर सफर फ्रॉम फैटिग. नेवर सफर फ्रॉम फैटिग. फैटिग नहीं होते मसल्स, से टायर्ड नहीं होंगे ये मसल्स. नेवर टायर्ड. And coming back to the heart structure again, the inner wall of the ventricle is having thick muscles. Irregular muscles हैं यहां पर ventricles में. These muscles are called papillary muscles. Papillary muscles. Ventricles, inner lining of the ventricles made of which muscles? Papillary muscles, and these papillary muscles are connected to bicuspid and tricuspid valve by means of thread like structures. Strings बोल सकते हैं आप उनको. Strings हैं कुछ thread like, and these thread like strings are called chordae tendineae बोलते हैं. What are these? Chordae tendineae. So what is the function of chordae tendineae? Chordae tendineae, they regulate opening and closing of bicuspid and tricuspid valves. Just like a person at the door, एक person है door पर and he is opening and closing the door. He is always opening and closing the door. The same thing. बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को ओपन और क्लोज करने के लिए कुछ स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं. स्ट्रिंग्स मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दोज आर कॉर्डे टेंडिने. ओके, एंड दिस स्ट्रिंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एनफ. अगर ये थ्रेड ब्रेक हो गए तो क्या होगा? ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो वाल्व था ना, ये एट्रियम की तरफ ओपन हो जाएंगे, इतना फोर्स रहता है. डोर कितनी जगह ओपन होना चाहिए? वन साइड ओपन होना चाहिए. डोर एक ही साइड ओपन होना चाहिए. अगर ये डोर दोनों साइड ओपन हुआ तो बहुत मुश्किल है. ये डोर वेंट्रिकल के साइड ओपन होना चाहिए. अगर ये डोर एट्रियम के साइड ओपन होगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल से ब्लड आराम से एट्रियम में चले जाएगा. फिर देयर शुड नॉट बी बैकफ्लो. हार्ट वाल्व्स में डिफेक्ट आ गया बोल के ऐसा सुने होंगे. हार्ट वाल्व्स में डिफेक्ट आ गया है किसी पर्सन को, तो सर वाल्व्स इम्प्रॉपर वर्क करने से हो रहा है इससे. सो ये डोर नॉर्मली बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स, दिस डोर्स वेयर दे ओपन इन एट्रियम और दे ओपन इन वेंट्रिकल. दे ओपन इन वेंट्रिकल. मोस्ट ऑफ द डोर्स कैसे रहते हैं? दे ओपन वन साइड. हार्ट का भी वाल्व जो है वन साइड ओपन होता है. ये वेंट्रिकल साइड ही ओपन होना चाहिए और उसको होल्ड करके रखना है टाइटली. अदरवाइज ये जो इतना फोर्स होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, अगर ये कॉर्डे टेंडिने नहीं रहेंगे ना तो ये डोर एट्रियम में ओपन हो जाएगा. सो फॉर दैट पर्पस, टू प्रिवेंट बैकफ्लो, कॉर्डे टेंडिने आर दे. क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉर्डे टेंडिने का फंक्शन क्या है? दे रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ bicuspid and tricuspid valve and prevent backflow of blood. Okay, now according to you, which chamber of the heart is doing maximum work? कौन सा चेंबर सबसे ज्यादा काम कर रहा है?
कौन सा चेंबर सबसे ज्यादा काम कर रहा है? सो अगर हम सोचेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा काम कर रहा है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, एंड आर्टरी कैरी ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट। जस्ट इमेजिन ये हार्ट है, और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड है यहां से निकल के जो है सारे बॉडी पार्ट्स को जाना चाहिए, अपर बॉडी पार्ट्स टू द नेक, to every part, stomach, intestine, liver, kidneys, legs, hands, everywhere. So just imagine left ventricle has to pump blood so forcefully, कहीं पे भी ब्लड ऐसा